Hello students, today's our topic is operations on sets. In the last lecture, we already discussed about operations on sets. Today, we will solve some questions related to the topic operations on sets. Dear students, suppose these are some sets. Here U, whose elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 is a universal set. A, B, C and D are subsets of this universal set U. So now we start our first question, which are related to operation on sets. A union B. You know, in the union of two sets, we take all elements of both A and B. Mean, we take all elements of A as well as all elements of B. We take those elements, dear students, which are either in A or B. So firstly, we will take all elements of set A. So 1, 2, 4, 6. After then we will take all elements of set B. 1, 3, 4, 7. So we can write only 3 and 7. You know, we can write one element only one time. So this is the union of two sets. डियर स्टूडेंट्स, यूनियन में हम क्या करेंगे, ए के और बी के सारे एलिमेंट्स हम राइट करेंगे. तो फर्स्टली हमने ए के एलिमेंट्स राइट कर दिए, इसके बाद बी के. बट बी में जब हमने राइट करना स्टार्ट किया तो 1 जो है ऑलरेडी हम लिख चुके हैं. इसके बाद 3 नहीं लिखा था, 3 लेंगे. 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं और हमारा 7 बचता है. ये आपको पता है कि एक एलिमेंट को हमें एक बार ही लेते हैं. ए यूनियन B union D. Now we want to find A union B union D. तो डियर स्टूडेंट, हम तीनों के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे. We will take all elements of set A, B and D. So firstly we will take all elements of set A, 1, 2, 4, 6. After then B, 1, 3 and 7, because 4 we have already taken, and remaining elements of D, 7 and 8. So dear students, यूनियन में हम वो एलिमेंट लेते हैं जो उन सारे सेट्स के अंदर है. सेकंड, इंटरसेक्शन. A intersection B. In the intersection of two sets, we will take only common element which belongs to both sets A and B. Dear student, intersection में हम common element लेते हैं जो A और B में common है. यहाँ देखिए 1 common है और 4 common है. तो intersection में हम किसको लेंगे सर? अब 1 और 4 को लेंगे. इज दैट क्लियर? और देखिए बेटा, जैसे सपोज कीजिए हमने ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट करना है. ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो डियर स्टूडेंट, वी विल टेक कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दीज 3 सेट्स, मीन ए, सी एंड डी. 1 is not in D, 2 is not in D, 4 is not in D and 6 is also is not in D. So there is no common element. So A intersection D is a null set. Is that clear? After then A minus B, difference of two sets.
we take those elements, dear student, we take those elements which are in set A but are not in set B. हम A के बेटा वो एलिमेंट्स लेंगे जो B में नहीं होने चाहिए। जैसे A में हमारे पास 1 2 4 6 हैं, अब इनमें से B में एलिमेंट 1 और 4 हैं, तो हम इस 1 और 4 को छोड़ देंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचे बेटा अपने 2 एंड 6। तो इस प्रकार हम क्या ले लेंगे 2 एंड 6 जो है 2 एलिमेंट्स लेंगे। और देखना बेटा D माइनस C, so we will take those elements which are in D but are not in C, so we can take only one element C. Is that clear? And fourth, complement, A complement. You know, in the complement we will take those elements which are in U बट आर नोट इन ए। हम वो एलिमेंट लेंगे जो यू में है बट ए में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन बेटा यू माइनस ए। सो विल टेक दोज एलिमेंट्स विच आर इन यूनिवर्सल सेट बट आर नोट इन ए। सो डियर स्टूडेंट, हम 1 2 4 6 को छोड़ देंगे और U में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम लेंगे। तो 3 लेंगे बेटा, 5 लेंगे, 7 और 8, क्योंकि हम 1 2 4 6 को छोड़ देंगे। तो बेटा क्या एलिमेंट आएंगे 3 5 7 एंड 8। बी कॉम्प्लीमेंट बेटा, तो बी कॉम्प्लीमेंट में हमें बी के एलिमेंट छोड़ देंगे और बी में एलिमेंट कौन कौन से हमारे 1 3 4 7। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स यू के ले लेंगे हम। तो 1 छोड़ेंगे बेटा 2 लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, 5 और 6 लेंगे बेटा, 7 नहीं लेंगे बट 8 लेंगे। तो इन द कॉम्प्लीमेंट वी विल टेक दोज एलिमेंट्स विच आर इन यू बट आर नॉट इन ए और बी और सो mean any given set. And our fifth operation is symmetric difference. You know, if A and B are two given sets, then the union of A minus B and B minus A is a symmetric difference. Is a symmetric difference. Suppose A symmetric difference B. So what is symmetric difference? Union of A minus B and B minus A. So for this we firstly find the value of A minus B, after then B minus A, and in the last union of A minus B and beta B minus A. So A minus B, तो पहले हम A माइनस बी लेंगे बेटा, तो इसमें A के एलिमेंट लेंगे और उन एलिमेंट को छोड़ देंगे बेटा जो B में है। तो 1 छोड़ना पड़ेगा, 2 लेंगे, आफ्टर देन 4 छोड़ना पड़ेगा बेटा और 6 लेंगे। B माइनस A, इसमें B के एलिमेंट लेंगे और B में जो एलिमेंट हैं जो A में भी है उनको हम छोड़ देंगे। तो 1 और 4 को छोड़ देंगे बेटा, सो 3 एंड 7। नाउ A सिमेट्रिक डिफरेंस B, A सिमेट्रिक डिफरेंस B, यूनियन ऑफ A माइनस B एंड B माइनस A, एंड इन द केस ऑफ यूनियन वी टेक दोज एलिमेंट्स विच आर इन A माइनस B और in B minus A, mean we will take all elements of A minus B and B minus A. So we take 2 6 3 and 7। बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस से पहले हम A माइनस बी फाइंड आउट करेंगे।
इसके बाद बी माइनस ए फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद दोनों की यूनियन निकाल लेंगे। और यूनियन में आपको पता है बेटा दोनों के हम सारे एलिमेंट्स लेते हैं, ए के भी सारे लेंगे और बी के भी। तो इसमें हम किसके सारे एलिमेंट लेंगे, ए माइनस बी के भी और बी माइनस ए के। नाउ वी टेक सम मोर एग्जांपल्स। वन, suppose these are our sets A union B complement of A union B. So dear student, firstly we find the value of A union B. A union B. So we will take all elements of A and B. 1, 2, 4, 6, 3 and 7. Now we will find complement of A union B. And in the case of complement, we will take those elements which are in U. U mean universal set, but are not in A union B. तो बेटा A union B complement में हमें ये union B के एलिमेंट छोड़ देंगे। तो 1 को छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे, 3 को छोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे। 5 इसमें नहीं है तो 5 लेंगे बेटा, 6 इसमें है, 7 इसमें है, तो क्या बचता है हमारा 8। तो इस प्रकार हमें A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखना बेटा, सपोज करो हमें D माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ D माइनस ए। सो D माइनस ए, बेटा D के वो एलिमेंट लेंगे जो A में नहीं होने चाहिए। तो 7 और 8 हम एज इट इज ले लेंगे, क्योंकि 7 भी A में नहीं है और A में 8 भी नहीं है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर दीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट में से 7 और 8 को छोड़ देंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे बेटा हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत इजी सम है और आप इनको आराम से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, वी टेक अनदर एग्जांपल। नाउ वी वांट टू प्रूव एनी गिवन स्टेटमेंट। सपोज दीज आर आवर सेट्स। वी वांट टू प्रूव दैट A माइनस B यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। इज इट क्लियर? A माइनस B यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। सो इन द लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्टली we will find the value of left hand side, that is A minus B union C। तो बेटा पहले से B union C फाइंड आउट करेंगे। B union C, इसमें हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लेंगे जो B में और C में है। तो B और C के सारे एलिमेंट लीजिए, 1, 3, 4, 7। इसके बाद C के 1 आ चुका ना बेटा, 2 लेंगे, 5 लेंगे और 8 लेंगे। नाउ we will find the value of A minus B union C. So we will take those elements which are in A, but are not in B union C। जो A में है और A के वो एलिमेंट जो B union C में, उनको छोड़ देंगे हम। 1 इसमें है बेटा, देखो ध्यान से, 2 भी इसी में है, 4 भी है, 6 नहीं है। ठीक, हमारा एलिमेंट क्या आएगा इसमें, 6 आएगा। तो ये था बेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेंगे हम राइट हैंड साइड, एंड आवर राइट हैंड साइड इज A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। तो फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस B। बहुत बार कर चुके हैं ना, A के एलिमेंट लेंगे और वो छोड़ देंगे जो B में है। तो 1 छोड़ना पड़ेगा, 4 छोड़ना पड़ेगा। तो क्या लेंगे बेटा, 2 and 6। आफ्टर देन A माइनस C। A माइनस C में एक एलिमेंट लेंगे
और ए में से जो एलिमेंट सी में उनको हम छोड़ देंगे, तो 1 छोड़ देंगे बेटा, 2 छोड़ देंगे, तो क्या बच गया हमारा 4 एंड 6। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस बी एंड ए माइनस सी, and you know in the intersection we take common elements. So now we take common elements of a minus b and a minus c, which is only one element, that is 6. So left hand side is equal to right hand side. Is that clear? We take one more example beta. Prove that complement of A intersection B is equal to A complement union B complement. So left hand side A intersection B, हमने प्रूव क्या करना है बेटा, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. सो फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन वी टेक ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट ए एंड बी, एंड दोज आर 1 and 4. नाउ complement of A intersection B. So we leave these two elements 1 and 4, and remaining elements of U are we will take in the complement of A intersection B, and those are 2, 3, 5, 6 and 7 and 8. Is that clear? Now right hand side. What is our right hand side? A complement union B complement. So firstly we will find the value of A complement. In the case of A complement we take those elements which are in U but are not in A. तो बेटा ये एक एलिमेंट छोड़ देंगे ना, तो क्या बचा हमारे पास 3 बचेगा, 5 बचेगा एंड 7 और 8 बचेगा. सिमिलरली हम B का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे. B कॉम्प्लीमेंट में बेटा B के एलिमेंट छोड़ देंगे, तो 1, 3, 4, 7 को छोड़ दे, क्या बचेगा बेटा 2, 5, 6 and 8. Now union of both A complement union B complement. So in the case of union we take all elements of A and B, mean we will take all elements of A complement and B complement. Those are 3, 5, 7, 8, 2, 5, 6 and 8. In the left hand side 2, 3, 5, 6, 7, 8, and in the right hand side 2, 3, 5, 6, 7 and 8. So we can say left hand side is equal to right hand side. So dear student, these are some questions which are related to operations on sets. इनको अच्छे से स्टडी करेंगे, इनको बार बार रिवाइज करेंगे, करके देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे इन्हीं ऑपरेशन ऑन सेट्स के, जो हमारा ये टॉपिक है उस पर. थैंक यू स्टूडेंट्स.